आपको मेरा आवाज आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Stoichiometry is calculations based on balanced chemical equation, right? तो ऐसा कोई भी कैलकुलेशन जिसको करने के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जरूरत पड़ता है are called as a stoichiometric calculations. So you have seen many questions of this type, stoichiometry. बस ये ट्राई किया किसी ने? फाइव पॉइंट सेशन या अभी तक नहीं किया तो एक दिन और लो चलेगा. बट टेल में अगर किसी का हो गया मुझे बताना, हम लोग डिस्कस करेंगे. ला देखो, दिस क्वेश्चन व्हाट वी सॉल्व वाज बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन. दिस क्वेश्चन वाज आल्सो बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन. दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन. This question was based on balanced chemical equation. So any question which is based on balanced chemical equation is called as a stoichiometric calculation, and the process of making such calculations are called as the process of making such calculation is called as the stoichiometry. Okay, so let's start now the next part of the chapter, that is solutions. Okay, so let us understand what are solutions. Okay, the class, based on these solutions, we have second chapter in 12th standard. The name of chapter is solutions and colligative properties of solutions. Okay, we have entire chapter based on this topic, solutions. So try to understand solutions. We have to learn it again next year. Okay, next year के book में solutions के आपके formula नहीं मिलेंगे आपको LN में भाग करने. Okay, so let us start with the solutions. So class, I ask you a simple question. Suppose in beaker, if I take water, say for example I take 1 liter water. You can take any quantity. You take water. Okay, and to that water, if you add 1 gram of salt. Salt क्या होता है बच्चों लोग? NaCl, right? Question is, after adding salt in water and stir it, okay, can you see salt and water separately here? आप salt and water को separately देख सकते हो क्या beaker में after dissolving? No, sir. No, sir. तो आपको कितने faces दिखते हैं? आपको यहाँ पे कितने faces दिखते हैं? How many One faces? face. One Only face. single face, right? You can see only single face. So class, so salt and water is a, we call in chemistry as a homogeneous mixture. कैसा mixture है? Homogeneous mixture. Okay. So class, so if I dissolve salt in water, solution mixture become homogeneous. So class, homogeneous बोलने के लिए requirement क्या है? Even if you use ultra microscope, अगर आप ultra microscope के अंदर भी देखते हो उसको, तो उस माइक्रोस्कोप में भी आपको सॉल्ट के या फिर वाटर के पार्टिकल नहीं दिखने चाहिए, राइट? यू शुड नॉट एबल टू सी द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, या फिर ठीक है, यू शुड नॉट एबल टू सी द सॉल्ट. ये समझे आपको? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखने चाहिए. ओके, तो क्लास दिस इज रियली होमोजेनियस मिक्सचर. ओके क्लास, अगर हमने इसमें 1 ग्राम सॉल्ट डाला है, अभी हम लोग इसमें अंदर 1 ग्राम शुगर डालेंगे और उसको स्टर करेंगे. क्लास सोल्यूशन अभी भी होमोजेनियस है नहीं है? तो क्लास, तो आपके पास कितने कंपोनेंट्स है, कितने सब्सटेंसेस है? कम से कम 2, राइट? या 2 से ज्यादा सब्सटेंस अगर क्या बनाते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर. तो इफ यू होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मिनिमम 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस, तो दैट होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड एज द, तो मैं लिखूं यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, बोलो कितना? 2 और more substances, right? It's called solution. क्या बोलते हैं इसको? Solution. Per class, if you see the definition, the scientific, the perfect definition is called as the true solution, real solution, right? True solution. तो क्लास, some part which is not in your textbook, जो टेक्स्ट बुक में नहीं वो भी बता दूं आपको मैं, इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक नेक्स्ट चैप्टर सीखने के लिए. तो यहाँ पे जो पार्टिकल है सॉल्ट के, क्या आप अपने आंखों से देख पाओगे उनको? सॉल्ट क्या, शुगर के जो पार्टिकल अंदर पानी में डिसॉल्व किया है, कैन यू सी विद योर आईज? No, sir. No, sir. No, sir. Can you No, see? sir. Can you see under ultra microscope?
अंडर अल्ट्रा Yes, माइक्रोस्कोप? sir. नो नो Yes, sir. नो नो, यू कांट, नहीं देख सकते हम लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में भी। तो ये पार्टिकल इतने छोटे किसके, सॉल्ट के या फिर शुगर के, इंडिविजुअल Sugar. छोटा है कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में वो पार्टिकल आपको नहीं दिखेंगे डिसॉल्व होने के बाद। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. अल्ट्रा माइक्रोस्कोप ऑल्सो। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है किसके, शुगर या फिर शुगर या फिर सॉल्ट के, उनका साइज 1 नैनोमीटर। आपको नैनोमीटर मालूम है? नाम सुना नैनोमीटर, मीटर, Yes, sir. एंगस्ट्रॉम, एकही झालं नाही मी तर नैनोमीटर। खायला आलो होतो एक तरी एकही नाही झालं. ओके, तो पार्टिकल साइज क्या है यहाँ पे, जो पार्टिकल आपके सॉल्ट के या फिर शुगर के, दे आर लेस देन 1 नैनोमीटर। मम्मा काढू अरे किती लाल लाल झाले सगळे. Just a minute, बच्चों लोग, I need to mute all. Okay. This is not a way you learn any subject. Okay. So is less than 1 nanometer, right? Particle size, everyone? Yes. हाँ. तो क्लास जो पार्टिकल साइज है कितना है, 1 नैनोमीटर से क्या है कम है। तो सॉल्यूशन इज होमोजेनियस इन रियल सेंस, ये एकदम रियली होमोजेनियस मिक्सचर है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। ओके, तो मैं दूसरा एग्जांपल, क्लास अपने चैप्टर में इतना ही है, राइट? ट्रू सॉल्यूशन सिंपल डेफिनेशन आपको सिर्फ बाहर करना है, बट यू रिक्वायर मेनी थिंग्स फॉर जेडबलई एंड नीट। तो मैं आगे का पार्ट बताता हूं आपको। क्लास समझो हमारे पास बीकर में वाटर है। ओके, वी टेक बीकर कंटेनिंग 1 liter वाटर। वाटर लिया हम लोगों ने, एंड टू दैट सपोज इफ ऐड 1 gram ऑफ स्टार्च। स्टार्च इज कलरलेस पाउडर। स्टार्च अलग अलग चीजों से मिलता है, पोटैटो से भी स्टार्च एक्सट्रैक्ट करते हैं, कलरलेस पाउडर होता है स्टार्च। ओके, तो क्लास इफ आई पुट 1 gram ऑफ स्टार्च इन वाटर एंड इफ आई स्टर द सॉल्यूशन, ओके, तो क्लास कैन यू सी द स्टार्च इन वाटर? आप स्टार्च का पार्टिकल पानी में देख सकते हो? आंसर इज नो. नो। तो क्लास स्टार्च इज ट्रांसपेरेंट पाउडर, तो आप पानी में स्टार्च के पार्टिकल देख नहीं सकते, राइट? ओके, तो क्लास अगर आप यूज करते हो क्या, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर आपको स्टार्च के पार्टिकल दिखना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, बराबर है? तो क्लास ये सिस्टम होमोजेनियस या नहीं है? नहीं. नाहीये. अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में आपको क्या हो रहा है, अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यू कैन सी द पार्टिकल्स ऑफ स्टार्च, राइट? तो सिस्टम इज नॉट होमोजेनियस। So class, you can't see with your eyes, but you can see through ultra microscope, right? So it is a heterogeneous mixture, right? Heterogeneous क्यों? Because आप दो फेसेस आपको दिखेंगे, एक वाटर का और एक किसका, स्टार्च का, अंडर व्हाट, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर, राइट? और यहाँ पे जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से ज्यादा है और 1000 नैनोमीटर से कम है, ठीक है? तो स्टार्च के पार्टिकल का साइज, जो आप पार्टिकल डाल रहे हो उनका साइज क्या है, 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर क्या है, बीच में है। 1 नैनोमीटर से क्या ज्यादा एंड 1000 नैनोमीटर से क्या कम. तो प्लस ऐसा सिस्टम ये होमोजेनियस नहीं है, बट यू कांट सी थ्रू योर नेकेड आईज, यू कैन सी थ्रू ओनली अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो प्लस इस बीच पे जो रेंज होता है, अपने जो पार्टिकल जो सॉलिड डाला है किसमें, वाटर में, तो अगर उनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है तो इसको हम लोग कोलाइडल डिस्पर्शन क्या बोलते हैं, इसको कोलाइडल डिस्पर्शन। और क्लास इस टाइम आपको 11 में इसका एक चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री नाम का, ओके, एड्सॉर्प्शन एंड कोलाइडस नाम का एक चैप्टर है जहाँ पे आप ये कोलाइडल डिस्पर्शन बहुत ज्यादा डिटेल में सीखोगे। ओके बच्चों लोग, क्या समझ लो, कोलाइडल डिस्पर्शन। ओके क्लास लास्ट वन अभी तो हम लोग वाटर लेते हैं। ओके, उस वाटर में हम थोड़ा सा चॉक पाउडर डालते हैं, ठीक है, पाउडर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, चॉक का पाउडर डालते हैं, चॉक पाउडर, या फिर थोड़ा सा ये डालते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, क्ले डालते हैं, मिट्टी, ठीक है, एंड फर्स्ट इट। तो क्लास क्या आपको क्ले के पार्टिकल पानी में अपनी आंखों से दिखते हैं डायरेक्टली? नहीं. Yes, sir. Yes, sir. आराम से दिखता है। क्लास थोड़ा टाइम और भी रुक जाओ ना तो ये पूरा क्ले नीचे सेटल भी हो जाता है, आराम से पूरा का पूरा दिखना शुरू होता है बाद में। पहले तो आपको वो पूरा
थ्रू आउट द मिक्सचर दिखेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि थोड़ा टाइम चला जाएगा तो ये सब सेटल होकर आपको पूरे सबके सब पार्टिकल नीचे दिखेंगे। तो क्लास ये सिस्टम होमोजेनियस है हेटेरोजेनियस है? Heterogeneous. हेटेरोजेनियस है। हेटेरोजेनियस है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, राइट। और क्लास जो क्ले के पार्टिकल है उनका साइज 1000 नैनोमीटर से क्या है? ज़्यादा। Dada. Greater than 1000 nanometer. So class these particles can be seen through your naked eyes. तो अल्ट्रामाइक्रोस्कोप यहाँ पे जरूरत नहीं, राइट। तो क्लास इस पिक्चर को हम बोलते हैं हम लोग सस्पेंशन। क्या बोलते हैं इसको? सस्पेंशन। या फिर अपने स्कूल में एक नाम और सुना रहेगा, प्रेसिपिटेट। ये नाम सुना है कभी पहले? यस सर। जो नीचे Yes. सेटल होता है, प्रेसिपिटेट। तो क्लास तो 3 टाइप के आपके पास सिस्टम्स है। एक होमोजेनियस मिक्सचर, ओके, जिसमें पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, सो द पार्टिकल्स व्हिच आर डिसॉल्व्ड इन वाटर or any liquid cannot be seen through naked eyes or cannot be even seen through ultra microscope. क्या बोलते हैं उसको? ट्रू सॉल्यूशन, राइट। Yes. बीच वाला सिस्टम Yes. जहाँ पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा है पर 1000 नैनोमीटर से कम है, so particles cannot be seen through naked eyes but can be seen through ultra microscope. तो इसको बोलते हैं हम लोग colloidal dispersion. And last वाला सिस्टम जहाँ particles are so big so they can easily seen through naked eyes called as a suspension या फिर precipitate. ओके तो क्लास ये 3 सिस्टम है। ये पार्ट आपको कहाँ पे सीखना मिलेगा? चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री, कोलॉइड्स एंड एडसॉर्प्शन। तो क्लास हमें इस चैप्टर में फिलहाल क्या सीखना है? ओनली अबाउट व्हाट? ट्रू सॉल्यूशन। आपको सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन सीखना है, ठीक है। तो क्लास ट्रू सॉल्यूशन इज द ओके क्लास इफ आई आस्क यू क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, डिफाइन ट्रू सॉल्यूशन। या आंसर डिफाइन ट्रू सॉल्यूशन लिखा है आंसर ऊपर। इफ somebody asks you to define true solution, it is a homogeneous, right? Yes. Yes. Mixture Of two or more substance. 2 or More substance. more substances. Okay, तो जो नेक्स्ट पार्ट अभी देख रहे हैं हम लोग, दैट इज नॉट फॉर योर अगेन कॉलेज एग्जाम, ओनली फॉर JEE एंड नीट। तो प्लस सॉल्यूशन में 2 चीजें होती है, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। एनीबॉडी नो सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है रफली? तो क्लास व्हेन आई से देखो अभी एक्चुअली नाम क्या है? ट्रू सॉल्यूशन, राइट। पर मैं हमेशा बोलूंगा क्या? ओनली सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? व्हेन आई से सॉल्यूशन बाय डिफॉल्ट इट इज विच सॉल्यूशन? ट्रू सॉल्यूशन। True solution. ट्रू सॉल्यूशन को हम लोग सिर्फ सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ओके, अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो जब भी मैं ट्रू सॉल्यूशन बोलूंगा आई मीन इट इज ट्रू सॉल्यूशन। तो क्लास व्हेन आई मेक ट्रू सॉल्यूशन तो वहाँ पे 2 चीजें होनी चाहिए कंपलसरी। एक सब्सटेंस ज्यादा क्वांटिटी में जिसको बोलते हैं हम लोग बोलो, एक सब्सटेंस ज्यादा क्वांटिटी में उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट, राइट। और बाकी के बचे Yes, सब्सटेंस sir. कम क्वांटिटी में, बाकी के सब्सटेंस कम क्वांटिटी में उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूट। Solute. 2 चीजें होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो व्हाट इज सॉल्वेंट? Solvent is water. सॉल्वेंट क्या होता है? नहीं, हाँ ठीक है, वाटर देखो दूसरा सॉल्वेंट भी हो सकता है। सॉल्वेंट मतलब द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, राइट। सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्वेंट। और सॉल्यूट क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, राइट। Less quantity. एज द Solute. ओके, तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो क्लास अगर आपके सॉल्यूशन में मुझे होता है सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही होता है, सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। यस। ओके एग्जांपल, आपके पास वाटर सॉल्वेंट है, राइट। पर आप वाटर में एक साथ शुगर, सॉल्ट और बहुत सारी चीजें एक साथ डिसॉल्व कर सकते हैं ना, पॉसिबल है ना। तो सॉल्वेंट इज ऑलवेज ओनली वन बट सॉल्यूट कैन बी मोर देन वन। ओके तो बस अगर आपके सॉल्यूशन में एक ही सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट है, कितना सॉल्यूट है? एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, Take solvent. one solute and one solvent. Plus we call such solution as a binary solution. क्या बोलते हैं इसको लोग? Binary solution. Binary solution. Okay. तो क्लास आपके पास अगर सिर्फ एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है, we call that solution as a binary solution. Class again this is only for your JEE NEET, not required for your college exam. So my next question to all of you,
टेल मी हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर यू नो, स्टेट्स ऑफ मैटर, बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर। 3। ठीक है, कुछ लोग और भी नाम लेंगे पर क्लास, हमें बेसिक जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं कौन सा, सॉलिड, लिक्विड एंड Yes. सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट होता है और गैसियस स्टेट होता है। तो क्लास आपका सॉलिड या तो सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा या फिर गैसियस स्टेट में होगा, राइट। और सॉलिड भी या तो सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा या फिर गैसियस स्टेट में होगा। तो बेस्ड ऑन स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आप कितने टाइप के सॉल्यूशन बना सकते हो? पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यू कैन प्रिपेयर बेस्ड ऑन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट? सोचो, आप कैलकुलेट करो, जरा कोशिश करो, कितने आपको लगता है कितने बन सकते हैं सॉल्यूशंस? 9. यस, वेरी गुड, परफेक्ट। कैसे बोलो? आंसर इज करेक्ट। यस, पर सबके 3 सॉल्यूशन बनेंगे। वेरी गुड। के 3 दिन बनेगा ना? तो यस ठीक है, देख। सो तो टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन प्लस बुक में नहीं मिलेगा आपको और नोट्स में भी नहीं है, बिकॉज इज ओनली फॉर एमसीक्यू। टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस। तो क्लास सबसे पहले आप मैं लिखता हूँ यहाँ पे सॉल्वेंट, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सोल्यूट और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो क्लास अगर आपका सॉल्वेंट होगा सॉलिड, सॉल्वेंट क्या होगा? सॉलिड। एंड सॉलिड भी होगा क्या? सॉलिड। तो क्लास तो सॉल्वेंट भी सॉलिड, सॉलिड भी सॉलिड। क्लास एनी एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा है? क्लास सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर, राइट। तो अब जो चीजें मिक्स करोगे दोनों, तो दे विल फॉर्म हाउ मेनी फेजेस? दे विल फॉर्म ओनली वन फेज। सर क्लास इफ आस्क क्वेश्चन, अगर हम लोग वाटर में पेट्रोल डालते हैं, वाटर प्लस पेट्रोल, तो क्लास क्या आप क्लियरली वाटर एंड पेट्रोल को अलग अलग फेसेस में देख पाते हो? यस सर। Hey. तो क्लास वो कैसे होगा आपका मिक्सचर? हेटेरोजेनियस हो गया, राइट। क्या हो गया? Yes. हेटेरोजेनियस। तो वो सॉल्यूशन नहीं है। जब सॉल्यूशन बनेगा तो कैसे बनना चाहिए? होमोजेनियस, द सिंगल फेस। आपको दोनों मिक्स करने के बाद आप यू शुड नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश, इट शुड बी सिंगल फेस। तो क्लास आपको सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूं। ओके, अपने सबने गोल्ड रिंग तो देखा रहेगा, सब लोगों ने गोल्ड का कोई भी ऑर्नामेंट। Yes, sir. प्लस 100% प्योर गोल्ड से कभी ऑर्नामेंट बनते नहीं, उसमें थोड़ा सा क्या डालते हैं? कॉपर। मतलब थोड़ा सा कॉपर होता है, उसके कैरेट बोलते हैं 23 कैरेट, 24 कैरेट, 21 कैरेट, 18 कैरेट बराबर है। तो क्लास आप कभी गोल्ड का भी कभी रिंग आप घर पे देखो कभी ठीक से, क्या आप कॉपर एंड गोल्ड आपको अलग अलग दिखता है या अभी इट इज होमोजेनियस? No. इट इज होमोजेनियस मिक्सचर और नॉट? Yes sir. Yes, it is. होमोजेनियस। क्लास स्टेनलेस स्टील, आपको ना स्टेनलेस स्टील में आपके घर में इतने सारे बर्तन होंगे स्टेनलेस स्टील के, तो उसमें कितने सारे मेटल होते हैं? उसमें आयन होता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है, कोबाल्ट होता है कुछ क्वांटिटी में। तो आपको दिखता है ये आयन, ये क्रोमियम, ये कोबाल्ट, ऐसा अलग अलग दिखता है कभी? No sir. नहीं ना। तो क्लास एग्जांपल इज, तो क्लास व्हेन यू टेक मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मेटल, दैट इज कॉल्ड एज द alloys। क्या बोलते हैं उसको? alloys। तो alloys आर एग्जांपल ऑफ व्हाट? जिसमें सॉल्वेंट भी सॉलिड और सॉलिड भी सॉलिड है। इज इट क्लियर? Yes. Plus next is again solvent solid and solute Liquid. liquid. Okay, socho solvent solid and solute liquid, solvent solid and solute liquid. So class I'll give example for this, थोड़ा सा typical example है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क करता हूँ। solvent solid and solute liquid है। तो class समझो मेरे पास 100 ग्राम सोडियम का मेटल है। कौन सा मेटल है? सोडियम। 100 ग्राम। ओके, उसमें मैंने डाला एक बीकर में, उसमें मैंने डाला समझो 1 ग्राम मर्क्यूरी। प्लस मर्क्यूरी मेटल का स्टेट क्या होता है? लिक्विड। प्लस ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये सोडियम मेटल है और ये मर्क्यूरी मेटल है। ठीक है, दोनों को मिक्स किया हम लोगों ने। तो क्लास जैसे हम सोडियम और मर्क्यूरी मिक्स करते हैं तो क्लास वो दोनों क्या करते हैं? कंबाइन होकर अलॉय बनता है।
रिएक्ट नहीं करते, वो कंबाइन होकर एक अलॉय बनाते हैं। ओके, ऐसा अलॉय बनाते हैं जैसे हमने देखा ना किसका, गोल्ड का, वैसे ही यहाँ पे भी अलॉय बनता है सोडियम और मर्क्यूरी का। यहाँ पे ज्यादा कौन है, सोडियम या मर्क्यूरी? Sodium. Sodium. सॉल्वेंट सॉलिड है, और कम क्या है, मर्क्यूरी। तो Mercury. लिक्विड क्या है, लिक्विड है। तो क्लास जैसे सोडियम और ऑलमोस्ट दुनिया में जितने मेटल है ऑलमोस्ट सबके साथ सोडियम क्या करता है, अच्छे से जेल होता है, मिक्स हो जाता है और एक अलॉय बनाता है। क्लास उसको बोलते हैं हम लोग, एनीबॉडी कभी नाम सुना है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, जोर से बोलो, बराबर बोल रहे हो। उस अलॉय को बोलते हैं हम लोग, क्लास ये आपको पेपर में बहुत बार लगेगा, एमालगम। क्या बोलते हैं इसको, एमालगम। Amalgam. बहुत सारे रिएक्शन में एमालगम यूज करने पड़ते हैं, आपको जब यह आएगा तो आपको याद आएगा। क्या बोलते हैं इसको, एमालगम। तो क्लास ये एमालगम कौन से मेटल के साथ बना है, सोडियम के साथ, राइट। तो इसका नाम क्या है, सोडियम अमालगम। क्लास एक मिनट बच्चे से, जस्ट मिनट रुको। तो इसका नाम क्या है बच्चे लोग, सोडियम Sodium amalgam. अमालगम, सोडियम अमालगम। ओके, यहाँ पे अगर जिंक लेते हैं हम लोग, 100 ग्राम जिंक लेते हैं, मतलब 100 ग्राम नहीं, हमें इतना बताना, जिंक लेते हैं। जिंक क्या होता है, सॉलिड मेटल होता है, राइट। अब मर्क्यूरी क्या है, लिक्विड मेटल है, राइट। सॉलिड और लिक्विड, ज्यादा क्या लिया अपने, जिंक, और कम क्या लिया है, मर्क्यूरी। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, आप गेस करो। Amalgam. जिंक अमालगम। तो प्लस ये अमालगम तो होता है, ये एग्जांपल है किसके, सॉल्वेंट सॉलिड एंड सोल्यूट लिक्विड। ये क्लियर है आपको। यस सर। Yes, sir. बस यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा तो अभी जिंक और सोडियम ऐसे स्पेसिफिक नहीं लिखूंगा, यहाँ पे सिंपल लिखूंगा क्या, मेटल अमालगम। क्या लिखूंगा, मेटल अमालगम। मतलब अमालगम क्या होता है, कोई भी मेटल का मर्क्यूरी के साथ क्या, सॉल्यूशन, राइट। यस। बस याद रखो, Yes. अमालगम में कोई भी मेटल मर्क्यूरी के साथ क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता जब सॉल्यूशन बनते हैं। याद रखो, जब कभी शुगर पानी में डालोगे तो शुगर एंड वाटर में बीच में रिएक्शन नहीं होना चाहिए, रिएक्शन होगा तो उसको सॉल्यूशन नहीं बोलते, दे शुड ओनली मिक्स। तो यहाँ पे सिमिलरली मेटल एंड मर्क्यूरी क्या होता है, मिक्स होते हैं, राइट। मेटल अमालगम, ठीक है, दैट इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड लिक्विड। प्लस ऐसे क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में, और ये आप बाद में कॉपी भी कर लो, मेटल अमालगम। ओके, प्लस तीसरा क्या होगा, गेस करो। Solid gaseous. सॉलिड गैस। ओके, क्लास सॉलिड गैस का एग्जांपल, सॉलिड गैस। तो क्लास ये भी थोड़ा टिपिकल एग्जांपल है सॉलिड गैस का। तो क्लास अगर आप हाइड्रोजन, अच्छा आप प्लैटिनम का लेते हो, मेटल लेते हो, क्लास ये प्लैटिनम मेटल है, राइट। Yes. कैसे, कौन से स्टेट में प्लैटिनम, कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। और उसके अंदर तो क्लास ये जितने भी आइटम्स है प्लैटिनम के कैसे रहेंगे, एक डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज होते हैं, राइट। तो पूरा स्ट्रक्चर देखो प्लैटिनम का, तो ये सब प्लैटिनम के आइटम है, प्लैटिनम के मेटल में सब ये प्लैटिनम का प्लेट है, यहाँ पे सब आइटम्स अरेंज है प्लैटिनम के। तो ये बड़े बड़े आइटम के बीच में गैप क्रिएट होता है, हाँ या ना, अंदर पूरे स्ट्रक्चर में गैप्स क्रिएट होता है, बिकॉज हाँ। तो क्लास वो छोटे छोटे गैप में हम लोग क्या रख सकते हैं, हाइड्रोजन के आइटम रख सकते हैं, किसके आइटम रख सकते हैं, हाइड्रोजन के Hydrogen. हाइड्रोजन। छोटे छोटे गैप्स में। क्लास इसके लिए भी आपको अलग से टॉपिक है, हाइड्राइड्स नाम का, चैप्टर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, वहाँ पे आप डिटेल में सीखोगे, इंपॉर्टेंट है अगेन। हाँ, तो यहाँ पे ज्यादा कौन है, प्लैटिनम ज्यादा है, हाइड्रोजन ज्यादा है, आपको क्या दिख रहा है ज्यादा, प्लैटिनम। प्लैटिनम। तो हाइड्रोजन के आइटम्स कम है, राइट। यस। तो क्लास तो ये सॉलिड गैस का एग्जांपल, ये भी टिपिकल एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या लिखेंगे हम लोग, प्लैटिनम ऑन हाइड्रोजन, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन ऑन प्लैटिनम, आई एम रियली सॉरी, हाइड्रोजन ऑन प्लैटिनम, प्लैटिनम। हाइड्रोजन एडजॉर्ब। या भी एडजॉर्ब क्या आता है, उसके लिए अलग से सीखना पड़ेगा आपको चैप्टर ऑन प्लैटिनम। प्लस 2-3 एग्जांपल टिपिकल, अदरवाइज बहुत सिंपल है। हाँ, प्लस नेक्स्ट इज, हाँ क्लास तीनों में सॉल्वेंट कौन है बोलो, सॉलिड है, राइट। तो क्लास Solid. याद रखो, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो क्लास सॉल्यूशन का नाम कौन डिसाइड करता है, सॉल्वेंट डिसाइड करता है, द नेम ऑफ सॉल्यूशन इज डिसाइडेड बाय सॉल्वेंट। तो क्लास तीनों में अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो हम उसको बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग,
solid Solid. solution. Plus next is solvent is liquid. Okay, यहाँ पे क्या आना चाहिए below सबसे लिखे हम लोग solids. Solid. Very simple example, सबको आता है example. Liquid ज़्यादा है, solid कम है. Water, salt. Sugar या फिर salt, right? Dissolved in water, right? Yes, sir. Simple. Sugar या फिर salt dissolved in water. That is solid, sorry, liquid solid. बाद में liquid liquid. तो मैं अभी आपको बताया था कि अगर हम लोग वाटर में पेट्रोल डालते हैं तो क्लास क्या सोल्यूशन मिक्सचर होमोजेनियस होता है या नहीं होता वाटर एंड पेट्रोल? नहीं नहीं होता है। नहीं नहीं, होता. आपको क्लियरली दो फेसेस दिखते हैं ना? Yes, sir. Yes. तो हम लोग इसको सोल्यूशन नहीं बोल सकते, राइट? नहीं हम लोग इसको सोल्यूशन नहीं बोल सकते, बराबर है? Yes. यस सर ओके क्लास, ओके आपको एसीटोन मालूम है? नाम सुना एसीटोन कभी? एसीटोन, ठीक है. नेल पेंट रिमूवर मालूम है? लड़की लोग को मालूम रहेगा नेल पेंट रिमूवर. हाँ, Yes. तो लड़कियां घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं नेल पेंट रिमूवर. उसको उसका केमिकल नाम है एसीटोन. तो अगर एसीटोन में आप पानी डालते हो तो आपको एसीटोन में पानी अलग नहीं दिखता. आपको क्या दिखता है? सिंगल होमोजेनियस मिक्सचर, राइट? आप वाटर देखो, आप दो अलग लेयर नहीं बनता, आपको एक ही लिक्विड लगता है. आप देख के नहीं बता सकते वो एसीटोन या वाटर है देख के सिर्फ. आर यू गेटिंग? इट इज सिंगल लेयर, सिंगल Yes, sir. होमोजेनियस मिक्सचर. प्लस और भी एग्जांपल है अल्कोहल, ठीक है? तो प्लस कोई भी अल्कोहल, सपोज इथाइल अल्कोहल, जो लोग शराब पीते हैं, राइट? इथाइल अल्कोहल. तो प्लस वो डायरेक्ट नहीं, उसमें थोड़ा पानी डालते हैं, राइट? तो प्लस अल्कोहल एंड वाटर आपको अलग दिखता है? नहीं, आपको एक लिक्विड, सिंगल लिक्विड दिखता है, राइट? ये तो प्लस ये मिक्सचर कैसे होमोजेनियस है हेटेरोजेनियस है? Homogeneous. होमोजेनियस हाँ, तो क्लास अगर हम लोग पानी में देखो, एक कुछ चीजें सुनो. अगर पानी में हम लोग शुगर डालते हैं, वाटर में शुगर डालते हैं, तो हम बोलते हैं शुगर पानी में क्या बोलो? सोल्यूबल है, राइट? Yes. ऐसा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? शुगर पानी में क्या है? सोल्यूबल है. हाँ Soluble. प्लस, हाँ पर क्लास अगर वाटर में हम लोग इथाइल अल्कोहल डालेंगे तो हम बोलेंगे इथाइल अल्कोहल पानी में सोल्यूबल नहीं बोलेंगे. तो जब दो लिक्विड मिक्स होते हैं तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग सोल्यूबल उसको बोलते हैं हम लोग मिसिबल. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मिसिबल. बस दो लिक्विड क्या होते हैं? सोल्यूबल नहीं होते. दो लिक्विड को क्या बोलते हैं हम लोग? मिसिबल. तो क्लास क्या अल्कोहल पानी में मिसिबल है? Yes. है. ओके क्लास क्या एसीटोन पानी में मिसिबल है? Yes. हाँ है. तो क्लास कोई भी दो या दो से ज्यादा लिक्विड जो क्या है? मिसिबल है, राइट? दैट इज लिक्विड लिक्विड, राइट? तो इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. ओके, इट इज मिक्सचर ऑफ, बोलो, Miscible. टू और मोर, राइट? मिसिबल बराबर लिक्विड्स. एग्जांपल देखें तो इथाइल अल्कोहल प्लस क्या? वाटर. Water. दिस इज लिक्विड लिक्विड. बाद में लिक्विड गैस. ओके गेस करो लिक्विड गैस. ज्यादा क्वांटिटी में लिक्विड है, कम क्वांटिटी में गैस है. तो आपको सोडा वाटर मालूम है? सोडा वाटर, यस सर सोडा वाटर में क्या होता है? ये टाइट रखते हैं बटन. इसके अंदर क्या होता है? वाटर. और इसके अंदर क्या होता है? डिसॉल्व CO2 गैस. कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड क्या गैस है ना? Yes, sir. या फिर एंटर एक्वेटिक लाइफ, जो भी जीव पानी में रहते हैं, एक्वेटिक लाइफ, प्लस वो किस पर सर्वाइव होते हैं? पानी में जो क्या डिसॉल्व हुआ होता है? ऑक्सीजन, बराबर ना? Oxygen. तो क्लास सर रिवर के वाटर में या सी के वाटर में, लिक्विड वाटर में क्या थोड़ा सा क्वांटिटी में ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होता है, राइट? तो हम लोग बोल सकते हैं एरेटेड ड्रिंक्स, बराबर ना? एरेटेड ड्रिंक्स मालूम है आपको? यस सर प्लस सोडा वाटर एक्सेट्रा. ओके, अगला दूसरा O2 गैस dissolved in water, right?
वाटर। तो क्लास आपके अगर लिक्विड गैस, तो क्लास ये तीनों एग्जाम्पल समझे आपको? तो क्लास क्या दो लिक्विड एक दूसरे में मिक्स होते हैं, ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपको मालूम है? तो क्लास कुछ नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे। तो क्लास जब दो या दो से ज्यादा लिक्विड मिक्स होते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? दिस लिक्विड्स आर मिक्सेबल। So if you have mixture of two or more miscible liquids, that is what? Liquid solution. आवाज आ रहा है मेरा? Yes, sir. लिक्विड गैस भी पॉसिबल। तो क्लास ये तीनों केस में सॉल्वेंट कौन है? लिक्विड है। Liquid. तो क्लास ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग लिक्विड Liquid सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन। और क्लास अभी नेक्स्ट तीन टाइप होंगे देखें हम लोग। आपका सॉल्वेंट कौन है? गैस। Gas. एंड सॉलिड कौन है? Solid. सॉलिड। तो गैस एंड सॉलिड। तो क्लास इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है, ओके क्लास आपको कैम्फर मालूम है? कैम्फर पूजा में यूज करते हो कभी कभी, कैम्फर कापूर बोलते हैं हम लोग। Yes. ओके कैम्फर। तो क्लास कैम्फर अगर हम लोग ना, कैम्फर का जो उसका टैबलेट्स होता है कैम्फर का, उसको हम लोग ऐसे ओपन रख दे, तो प्लस कुछ समय क्या क्या होता है, मतलब को पूरा कैम्फर उड़ जाता है राइट, और हवा में फैल जाता है बराबर ना? Yes, sir. तो प्लस कैम्फर क्या है? एट रूम टेम्परेचर कैम्फर क्या है? सॉलिड राइट। Yes, sir. और एयर क्या है? एयर गैस है बराबर। तो कैम्फर इन एयर क्या हो गया आपका? गैस सॉलिड बराबर ना? Yes, sir. यहाँ पे ज्यादा Yes, क्या है? sir. गैस है। यहाँ पे ज्यादा क्या है? गैस है। और कम क्या है? कैम्फर Solid. Solid. सॉलिड है। प्लस दूसरा चूहे मारने की दवाई, चूहे मारने की गोली आपने मालूम सुना है कभी? नैफ्थेलिन बॉल्स। नैफ्थेलिन बॉल्स। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगर घर में क्या होता है, कॉकरोच होते हैं तो नैफ्थेलिन बॉल्स हम लोग रखते हैं कपड़ों में। तो बस कुछ दिनों के बाद वो नैफ्थेलिन बॉल गायब हो जाता है राइट। Yes, sir. बस क्या क्यों गायब होते Yes, हैं? sir. इनके Yes, पार्टिकल्स sir. क्या हवा में फैल जाते हैं। तो आप बोले कि अभी वो तो एयर बन गया राइट। अगला जब आपने यूज किया था, लिया था, तब क्या थे वो? सॉलिड थे ना पहला, बाद में उनका वेपराइज हो Yes. गया। पर जो स्टेट फिजिकल स्टेट क्या उनका सॉलिड था, बाद में वो एयर बन गया, नो बाद में वो गैस बन गया, बात अलग है। पर रूम टेम्परेचर नैफ्थेलिन क्या होता है? सॉलिड होता है राइट। Solid. ये सॉलिड क्या किस में फैला हुआ है? हवा में फैला हुआ है Gas, राइट, गैस में फैला हुआ है। तो दैट इज एग्जांपल। प्लस आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, अगर आप केमिस्ट्री लैब में कभी आओगे तो देखोगे। प्लस अगर एक आयोडीन का बॉटल, प्लस आयोडीन का बॉटल ना बहुत टाइट रखा रहता है बंद करके, ढक्कन लगा के। आयोडीन के क्रिस्टल्स होते हैं सॉलिड कलर के, पर्पल कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, ओके, और बहुत डार्क फिल्म हो जाते हैं। और इनको ये अगर इसका ढक्कन अगर आपने ओपन रख दिया कभी गलती से, और क्लास अगर 10 मिनट के बाद आप लैब में एंट्री करते हो तो पूरा लैब कौन से कलर का दिखता है आपको? पर्पल कलर का। पूरा आयोडीन क्या होता है? हवा में फैल जाता है राइट। तो पूरा पर्पल पर्पल धुआं दिखता है आपको लैब में। एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. तो ये कुछ सॉलिड है, जो ये कुछ सॉलिड्स है वो क्या होता है? डायरेक्टली क्या बन जाता है? गैस। क्लास क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम लोग? सब्लिमेशन। बराबर सुना आपने? सब्लिमेशन बोलते हैं इसको हम लोग, जब सॉलिड सीधा गैस बनता है, लिक्विड बना बना। तो जो सब्लिमेशन होते हैं वो सॉलिड। सो फॉर यहाँ पे एग्जांपल क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे लिखते हैं, बोलते हैं हम लोग आयोडीन इन एयर राइट। या फिर दूसरा एग्जांपल कौन सा बोला आपको मैंने? कैम्फर इन एयर एक्सेट्रा। समझा आपको? क्लास नेक्स्ट इज गैस लिक्विड। गैस लिक्विड। तो क्लास इसका ये एग्जांपल टिपिकल है ध्यान दो गैस लिक्विड का। तो क्लास पुराने जमाने में एनेस्थीसिया कैसे थे मालूम है आपको? पेशेंट को बेहोश कैसे करते थे? एनेस्थीसिया आपने मूवी में बहुत बार देखा रहेगा। रुमाल लेते थे, उसके ऊपर कुछ लिक्विड डालते थे, नाम मालूम है लिक्विड का? हीरोइन को जब किडनैप करना होता था, क्लोरोफॉर्म राइट। Yes, sir. CaCl3 क्लोरोफॉर्म, CaCl3। तो क्लास क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया के फॉर्म में देते थे, पर क्लास क्लोरोफॉर्म अगर बहुत कॉन्सेंट्रेट लिया तो आदमी मर भी सकता है राइट। तो इट शुड बी गिवन इन प्रिसाइज क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी में देना चाहिए वो क्लोरोफॉर्म। तो क्या होता है, हमारे पास एक सिलेंडर होता है बड़ा वाला, उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन गैस भरा होता है। कौन सा गैस भरा होता है? नाइट्रोजन गैस। Nitrogen. फिर क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन गैस में सिरिंज की हेल्प से बहुत कम क्वांटिटी में क्या करते हैं? लिक्विड क्लोरोफॉर्म CaCl3। क्लास बॉटल के अंदर क्या होता है? क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है राइट। पर जैसे बड़े कंटेनर में डालोगे तो इमीडिएटली क्या होता है, इसका फटाफट क्या बनना शुरू होता है? वेपर बनना शुरू होता है राइट, क्लोरोफॉर्म का। Yes.
हाँ, तो क्लास ये पूरा क्लोरोफॉर्म इस नाइट्रोजन के गैस में फैल जाता है और क्लास फिर नाइट्रोजन का गैस का सिलेंडर, ठीक है, पेशेंट को बाद में दिया जाता है थोड़ा सा, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में। तो क्लास ये एनेस्थेशिया ऐसा पुराने जमाने, अभी नहीं देते ऐसा एनेस्थेशिया, भी बहुत एडवांस हो गया। तो क्लास यहाँ पे क्लोरोफॉर्म क्या है बोलो, एट रूम टेम्परेचर लिक्विड है। आप क्लास को बहुत सारे अमोनिया में मिक्स किया तो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म वेपर बन जाता है और अमोनिया के साथ क्या हो जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है, राइट? Yes, sir. So that is example of liquid and sorry gas and liquid। तो यहाँ पे सबसे सिंपल एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म इन क्या, नाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CaCl3, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। इन नाइट्रोजन। ओके चलो समझा। अगला सबसे लास्ट वाला एग्जांपल है प्लस, जिसको मैंने स्टार मार्क किया, ये थोड़े एग्जांपल अलग से हैं, थोड़े से अलग है आपके लिए। अगला सबसे लास्ट वाला एग्जांपल है गैस एंड गैस। तो प्लस आप दुनिया की कोई भी 2 गैस 3 गैस या सब गैस मिक्स करो, हमेशा क्या बनता है, होमोजेनियस मिक्सचर। गैसेस आर कंप्लीटली मिसेबल। आप 2 या 3 या कितने गैसेस लो दुनिया में, प्लस देखो एयर है हमारे आजू बाजू में, क्या लगता है यहाँ पे थोड़ा ऑक्सीजन, यहाँ पे थोड़ा नाइट्रोजन, यहाँ पे, तो प्लस कैसे होता है, हमेशा मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर, राइट? तो प्लस गैस का सबसे Yes, बेस्ट sir. एग्जांपल क्या दोगे आप, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या दोगे गैस का? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ वो तो अलग अलग गैस हो गए। हाँ तो आप बोल सकते हैं ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा बोला भी चलेगा, but the best example is air, right? Air is the best example of mixture of 2 or more gases, agree? Yes. या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, या फिर mixture of any, right ना, Any gas। 2 or more gases, that's it। तो क्लास इस सॉल्यूशन का नाम क्या देंगे हम लोग, Gaseous। गैसियस सॉल्यूशन, राइट? गैसियस सॉल्यूशंस। तो क्लास ये पूरा टेबल आपके बुक में नहीं है, इसका आपको इस साल जरूरत नहीं है, नेक्स्ट ईयर भी आपको सीधा ये टेबल दिखेगा कहाँ पे, चैप्टर सॉल्यूशन को रेडी प्रॉपर्टी, ये टेबल आपको आज इट इज दिखेगा। तो क्लास वहाँ पे प्रॉब्लम क्या बताता हूँ मैं आपको, आप 12 का चैप्टर कोई पढ़ना शुरू करेगा तो इधर यहाँ पे उल्टा लिखा है, पहले किसका नाम लिखा है, Gaseous। सॉल्यूट का, और बाद में किसका नाम लिखा है, सॉल्वेंट का। Solvent. तो ऐसा करेंगे तो अपने एग्जाम्पल भी उल्टे हो जाएंगे ना। तो क्लास मैंने ऐसा क्यों किया बताओ, क्योंकि ये टेबल कहाँ का है, या एनसीईआरटी के बुक का है, और क्लास यही करना राइट है, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन का नाम कौन डिसाइड करता है, सॉल्वेंट डिसाइड करता है, राइट? तो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। तो ऑलवेज कीप हैबिट ऑफ रिमेंबरिंग सॉल्वेंट पहले और सॉलिड बाद में। इज इट क्लियर? Yes, sir. कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपको एनसीईआरटी में के बुक में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा वहाँ पे, मतलब आप बोलोगे साला एग्जांपल उल्टा दिख रहा है, तो नहीं, एग्जांपल उल्टा नहीं है, उन्होंने सिर्फ क्या किया टेक्स्ट बुक में 12th स्टैंडर्ड के, पहले सॉलिड का नाम लिखा और बाद में सॉल्वेंट का नाम लिखा, इतना डिफरेंस है। अदरवाइज एग्जांपल सेम ही आएंगे, आप उल्टा करोगे तो भी आपको सिर्फ लॉजिक मालूम होना चाहिए इसके पीछे, सॉरी कंसेप्ट। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes. इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर लिखा है तो लिखा अच्छा होगा, क्योंकि आपको ये सब याद रखना है 12th स्टैंडर्ड के लिए। लिख लिया? गुड, डन। ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। बाइनरी, तो क्लास कितने टाइप के बाइनरी सॉल्यूशन बनता है? 9. 9। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन कैन बी फॉर्म। तो 9 टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन कैन बी फॉर्म, ठीक है? ओके, बाद में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टर्म। क्लास अगर ये टर्म को नहीं आएगा तो सॉल्यूशन को लेके चैप्टर कर भी नहीं पाओगे नेक्स्ट ईयर। तो क्लास नेक्स्ट टर्म इज concentration of solutions। concentration of solutions, okay। now if I ask you amount, हम लोग amount को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोलो amount किस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है? चलो मैं इसका मतलब बताता हूँ। प्लस 1 किलो 2 किलो कंपैरिजन हो रहा है अमाउंट का, प्लस 2 किलो इज मोर अमाउंट देन 1 किलो, एग्री? Yes. Amount Yes, can be sir. expressed in terms of
वेट बराबर है। क्लास दूसरा 1 लीटर मिल्क 2 लीटर मिल्क, क्लास दोनों में अलग अलग अमाउंट है सेम अमाउंट है? अलग अलग है। क्लास अमाउंट कैन बी एक्सप्रेस इन वॉल्यूम। हाँ ठीक है, लीटर भी चलेगा पर वॉल्यूम, समझा? हाँ क्लास 1 डजन मैंगो 2 डजन मैंगो, दोनों अमाउंट सेम है डिफरेंट है? Different. एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है। Yes. अगला जब केमिस्ट्री में नंबर का नाम आता है तो क्लास तो दिमाग में कौन सा नंबर आता है? जब नंबर की बात करते हैं केमिस्ट्री में दिमाग में कौन सा नंबर आता है? Avogadro number. वेरी गुड, एवोगैड्रो नंबर, राइट। मतलब क्या? 6.02. 0.02 to 10 raised to 23. हाँ ठीक है, मतलब मोल्स ना बच्चे लोग। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो क्लास मैं बोलता हूँ मैंने 1 लीटर पानी लिया और उसमें 1 ग्राम शुगर डाला, तो क्लास पानी में किस में एक्सप्रेस किया मैंने? वॉल्यूम में, राइट। और उसमें 1 ग्राम शुगर डाला तो शुगर किस में एक्सप्रेस किया मैंने? वेट में, Wait. ठीक है, पॉसिबल है। क्लास मैं बोलता हूँ मैंने 1 किलो पानी लिया उसमें 1 मोल शुगर डाला, तो क्लास 1 किलो पानी लिया उसमें 1 मोल शुगर डाला, तो क्लास अभी मैंने अमाउंट किस में एक्सप्रेस किया? Mole में. वेट में और मोल में, वेट और मोल में। 1 किलो पानी और उसमें 1 मोल शुगर, तो वेट एंड मोल में। तो क्लास आप कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो, राइट? वेट वॉल्यूम, वॉल्यूम वेट, वॉल्यूम मोल्स। तो क्लास तो क्लॉन्सन का सॉल्यूशन होता है क्या है, तो पहले वो देखते हैं। तो क्लास समझो हमारे पास बीकर में या फिर हमारे कप में चाय बना के रखा है, तो क्लास कुछ लोग डायरेक्ट चाय शक्कर नहीं डालते हैं, बाद में शक्कर लेते हैं चाय में। तो क्लास ये यहाँ पे चाय लिए, दोनों को 2 चाय का कप है। प्लस एक आदमी ने लिया चाय में 1 स्पून शुगर और एक आदमी ने लिया इसमें 2 स्पून शुगर, तो प्लस दोनों भी चाय ही है, राइट? Yes, sir. प्लस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है नहीं है? नहीं. नहीं है। किसका ज्यादा है, पहला या दूसरा? दूसरा. बराबर है। तो क्लास तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, अपने बना रहा है। तो क्लास साइंटिफिकली इसको कैसे बोलेंगे, तो क्लास इसको बोलेंगे हम लोग अमाउंट ऑफ सोल्यूट। क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ Amount of solute. प्लस हम लोग मास वॉल्यूम मोल नहीं, हमें मालूम नहीं, हम लोग कुछ भी ले सकते, राइट? हम लोग वजन भी ले सकते हैं, हम लोग वॉल्यूम भी ले सकते हैं, हम मोल भी ले सकते हैं। तो हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे? अमाउंट, राइट? अमाउंट ऑफ सोल्यूट Solute. इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ, बोलिए, इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, बराबर ना? Solvent. सॉल्वेंट। प्लस 1 लीटर पानी में 1 ग्राम शुगर, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम शुगर, तो प्लस दोनों अमाउंट अलग अलग है इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। Yes, yes or sir. no? हाँ। Yes, So sir. amount of solute in specific amount of solvent is called concentration of solution. क्या इसको? Solution. Concentration of solution. Concentration of solution. Concentration of solution. So class, there are different ways of expressing concentration of solution. So class, that is the last part of the chapter and very important part. And class, this part is most important for chapter solution colligative properties. Ways of expressing concentration of solution. Okay. So class, याद रखो, in NCERT book this part is in 12th standard, okay? और आपके बुक में दिस पार्ट इज इन 11th स्टैंडर्ड। अभी आपको ये 11th स्टैंडर्ड में सीखना है, पर एनसीईआरटी बुक में ये कहाँ पे है? 12th स्टैंडर्ड में, राइट? तो वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग concentration of solution। तो सबसे पहला वे है परसेंटेज बाय मास। और यू कैन से वेट, मास और वेट जो भी लिखना आप लिखो, परसेंट मास या परसेंट वेट। अगला इसका सिंबल लिखते हैं हम लोग W/W। लेट मी एक्सप्लेन क्या होता है। तो आपके बीकर में
95 ग्राम वाटर है, कितना वाटर है? 95 ग्राम। 95. तो आपने 5 ग्राम शुगर डाल दिया, स्टर कर दिया। क्लास पहली बात, सोल्यूशन बनेगा नहीं बनेगा? शुगर वाटर में डिसॉल्व होगा या नहीं होगा? शुगर होगा सर। तो मिक्सचर इज Homogeneous. होमोजेनियस। Homogeneous. मिक्सचर होमोजेनियस होता है तो उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो वैसे सॉल्यूशन बन गया, राइट? हाँ। क्लास माय क्वेश्चन इज आपके पास कितना ग्राम सॉल्यूशन है? 100 gram. 100 ग्राम। वेरी 100 गुड, ग्राम। क्योंकि 5 ग्राम सोल्यूट है आपका, बराबर, एंड 95 ग्राम सॉल्वेंट है, राइट? सॉल्वेंट 5 ग्राम से 95 ग्राम सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन कितना हो गया आपका? 100 gram. तो अब मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, इस सॉल्यूशन में शुगर का परसेंटेज कितना है? मास परसेंटेज 5%. 5%। वेरी गुड। और वाटर का 95%। 95%, राइट? तो प्लस तो परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला होता है, तो मैंने पहले किसका पूछा? शुगर का, बता रहे? यस सर। Yes, sir. तो अगर मुझे शुगर का मास परसेंट फाइंड करना है, क्या बोलूंगा मैं? मास ऑफ शुगर द कंपोनेंट, बराबर। अभी यहाँ पे शुगर तो एग्जांपल हो गया, राइट? मास ऑफ द कंपोनेंट मतलब जिसका परसेंट फाइंड करना, राइट? Yes, sir. मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, राइट? अपॉन बोलिए, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। लेट मी एक्सप्लेन यू। मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 बस ये फॉर्मूला है। तो प्लस बताओ मुझे, इफ आस्क यू व्हाट इज परसेंटेज ऑफ वाटर, तो आपका आंसर क्या होगा? मास परसेंटेज ऑफ वाटर 95%। 95 अपॉन व्हाट इज मास ऑफ सॉल्यूशन? 100 इंटू 100, तो 95 अपॉन 100 इंटू 100, 100 कैंसिल, आपका आंसर आएगा 95% बाय क्या? मास, क्योंकि आप मास के परसेंटेज कंपेयर कर रहे हो, बराबर? एनी डाउट हियर? Yes, sir. तो मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, जिसका परसेंट फाइंड करना उसका मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मास परसेंटेज, राइट? यस का दूसरा होता है क्लास बुक में, दूसरा अभी मैं 2-3 और लिख के दूंगा जो आपके बुक में नहीं है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके बुक में नहीं, इसका मतलब जेडब्ल्यू में नहीं और नीट में नहीं, ऐसा नहीं होता ना, तो दे आर नॉट इन योर टेक्स्ट बुक बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। का दूसरा होता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज मास ऐसे लिखते हैं, फिर मास परसेंटेज ऐसा भी लिखते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो, ठीक है? सिंबल क्या होता है इसका? W/W, राइट? W क्लास W/W लिखा मतलब, प्लस अगर आपको क्वेश्चन में दिया है शुगर इज 10% W/W, मतलब आपको क्या दिया? शुगर का परसेंटेज बाय मास। Mass. तो अगर W/W लिखा मतलब उसका आपको परसेंटेज मास दिया है। ओके क्लास दूसरा होता है जो आपके बुक में नहीं है, वॉल्यूम परसेंटेज। कौन सा परसेंटेज? वॉल्यूम पर Volume percentage. Volume percentage. वॉल्यूम परसेंटेज, सिंबल होगा V/V, राइट? बाय तो क्लास यहाँ पे एनी गेसेस? सिंपल गेस कर सकते हैं आप, बोलो फॉर्मूला क्या होना चाहिए V/V का? Volume of components in solution. वॉल्यूम ऑफ upon कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, mass वॉल्यूम volume ऑफ of solution. इन सॉल्यूशन। तो क्लास मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट में डिफरेंस क्या है? तो मास परसेंट में आप क्या कर रहे हो? अमाउंट, दोनों भी अमाउंट, सॉलिड का और सॉल्वेंट का, किसमें एक्सप्रेस कर रहे हो? मास में, राइट? और यहाँ पे Yes, sir. और यहाँ पे किसमें? वॉल्यूम में। Volume. वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन सॉल्यूशन Upon डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100 into 100. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इनटू 100। तो मैं क्वेश्चन पूछता, अगर आप 95, फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, अगर आप 95 ml वाटर लेते हो, कितना वाटर लेते हो? 95 ml। Water. भाई ml किसका यूनिट है? Liter. Volume. वॉल्यूम का ना, ठीक है। 95 ने थोड़ा सा कम करते हैं, चलो 45 ml वाटर लेते हैं। कितना वाटर लेते हैं हम लोग? 45 ml वाटर। और उसमें मैं 5 ml एसिडोन डालता हूँ, वो भी लिक्विड है।
प्लस दोनों का वॉल्यूम राइट, हाँ, प्लस व्हाट इज परसेंटेज ऑफ एसीटोन इन सॉल्यूशन? 10 10%। वेरी गुड। कैसे किया आपने? तो किसका Of परसेंट पूछा one. आपको? एसीटोन का वॉल्यूम परसेंट, तो उसका वॉल्यूम कितना है? 5। पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 45. 50 ml। 50. सॉल्यूशन का 50, 5 प्लस 45 50 ना? पूरे Yes. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम में कितना है? 50 है। 5 डिवाइडेड बाय into 100, 50 to the 100 and 2 5 the 10, 10% by volume बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. प्लस नेक्स्ट इज, तो क्लास सेकंड वाला आपके टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला नहीं है, ओके, नोट्स में मैंने दिया है आपको। प्लस थर्ड इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, राइट? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, W बाय V, वॉल्यूम परसेंटेज। हाँ, तो इसको कैसे फाइंड करते हैं? तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम जब फाइंड करते हैं आपका सॉल्यूशन में हमेशा सॉलिड क्या होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड क्या होना चाहिए? सॉलिड। वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स वाओ होना ये डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, whole thing multiplied by 100. 100. तो फॉर एग्जांपल समझो हमारे पास 200 ml सॉल्यूशन है। कितना सॉल्यूशन है? समझो आपने एक कप सिरप का बॉटल है, ठीक है? ओके, बॉटल में कितना सॉल्यूशन है? 200 ml बराबर। ओके, और क्लास उसमें समझो कोई ऐसा सॉलिड दवाई है जो कितना ग्राम है? 2 ग्राम है। तो क्लास ऐसा कोई तो अपना 2 ग्राम है ऐसा सॉलिड जो हम लोगों ने 200 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो क्लास व्हाट इज वॉल्यूम परसेंटेज? तो व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूट? तो आपका 2 ग्राम है, राइट, सॉल्यूट? Yes, sir. ओके, और सॉल्यूशन कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में कितना है? 200 ml 200. 100. into 100, तो 100 2 जा, तो आपका आंसर होगा 1%, बराबर। वेट बाय वॉल्यूम। बस कभी कप सिरप का ना, कभी टाइम मिला ना आपको, तो कभी कप सिरप का अपना बॉटल देखो, वहाँ पे हमेशा W/V लिखा रहता है, कुछ दवाई का नाम W/V, चेक करो आप कभी भी। मतलब क्या, Yes, sir. जो सॉलिड दवाई है उसमें वो क्या है? 1% क्या है? वेट बाय वॉल्यूम है। ओके, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये समझा आपको? Yes, sir. ओके, प्लस नेक्स्ट होता है प्लस, अगेन दिस वाज आल्सो नॉट इन अ टेक्स्ट बुक क्लास बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोल फ्रैक्शन, सिंबल होता है इसका x। चलो मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते बताता हूं आपको मैं। प्लस एक बीकर में मैंने समझो 10 मोल वाटर लिया है। प्लस कैसे लेंगे 10 मोल वाटर? एनीबॉडी? हाउ टू टेक 10 मोल वाटर? 10 into Avogadro's number. 10 into 6.022 into 10 to 23। प्लस ये नंबर बहुत बड़ा है छोटा है? छोटा है। बड़ा है बड़ा. बड़ा है। प्लस अपनी 4 जिंदगी चले जाएगी तो भी हम लोग इतना बड़ा नंबर काउंट नहीं कर पाएंगे, राइट? एक एक वाटर का मॉलिक्यूल Yes, 1 2 3 4 ऐसा ये नंबर प्लस ये काउंट करते करते पूरा मतलब हजारों साल लगेंगे इसको काउंट करने के लिए। आर यू क्लियर? Yes. अगर मैं Yes. एग्जैक्ट नहीं Yes, कर sir. हाँ क्लास आप बोलोगे हम लोग 1000 साल लेंगे, तो क्लास आप वाटर का एक एक मॉलिक्यूल देख पाओगे क्या? नहीं. नहीं। No. तो क्लास ये प्रैक्टिकल नहीं है। मैं बोल रहा लैब में जाओ और मुझे 10 मोल वाटर लेके आओ, तो क्लास आप एक एक मॉलिक्यूल गिन के वाटर नहीं ला सकते। कोई स्मार्ट स्टूडेंट कैसे लाएगा वाटर 1 मोल 10 मोल वाटर फॉर मी? देखते हैं कौन आंसर देता है मुझे इसका। किसी को बोला मैंने जाओ और लैब में से 10 मोल वाटर लेके आओ, तो क्लास वो स्टूडेंट जाके 10 मोल वाटर में लेके आएगा या आएगी?
थोड़ा बहुत सिंपल है, एक फॉर्मूला आपने सुना है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलार मास, राइट। Yes, sir. प्लस आपको कितने मोल्स वाटर चाहिए, 10 10 moles. मोल्स। कितना लेना है आपको मालूम नहीं है, प्लस व्हाट इज मोलार मास ऑफ वाटर, 18 ग्राम पर मोल, बराबर ना। H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, बराबर है। Yes, sir. तो हाइड्रोजन का मोलार मास 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, टोटल कितना होता है 18 ग्राम पर मोल, बराबर है। तो क्लास W इज इक्वल टू 10 मोल इंटू 18 ग्राम पर मोल, प्लस पर मोल मोल कैंसिल, राइट। 10 18 जा 180 ग्राम, बराबर है। प्लस आप 180 ग्राम वजन कर सकते हैं वाटर का, प्लस 180 ग्राम वजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते। कर सकते करते हैं। ग्लास बैलेंस पे ग्लास रख दो, तो जो ग्लास समझो एक कंटेनर का वजन 100 ग्राम है, फिर इसमें थोड़ा पानी डाल दो, कब तक डालोगे, जब तक वो वेट कितने में होता है, 280 ग्राम नहीं होता है। 180 ग्राम। 180. तो अगर 280 ग्राम हो गया वाटर, उसमें से 100 ग्राम ग्लास का वजन है, तो वाटर का वजन कितना होगा, 180 ग्राम। सिंपल है ना, कर सकते हैं ना वजन हम लोग, Yes, sir. यस सर। लिक्विड का वजन आराम से कर सकते हैं हम लोग, गुड। तो क्लास आपको समझा, बोलने के लिए अच्छा है 10 मोल 10 20 मोल, पर लेते वक्त कैसे लेना पड़ता है हम लोग को, वेट लेना पड़ता है, राइट। Yes. गुड, ये रहेगा, सबको समझा मैंने क्या बोला ये। यस सर। हाँ, Yes. अब मैंने बोला इसके अंदर अभी आप क्या करो, उस वाटर में आप 0.1 मोल शुगर डालो, क्या डालो, 0.1 मोल शुगर, ग्लूकोज मतलब कैसे लेंगे ग्लूकोज, 0.1 मोल। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12 H12O22। नहीं O6, ग्लूकोज का। आप बोल रहे हो फ्रक्टोज का, वो सुक्रोज का है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, राइट। तो बस आपको कितने मोल चाहिए, 0.1, राइट। Yes. 0.1 प्लस इसका मोलर मास आप फाइंड करोगे, तो इसका आंसर आएगा आपको 180, करके देखो बाद में। 180 कितना आएगा, 180 ग्राम पर मोल। तो प्लस एनीबडी कितना ग्राम शुगर लेना पड़ेगा आपको, तो W इज इक्वल टू 0.1 मोल इंटू 180 ग्राम पर मोल, तो प्लस पर मोल मोल कैंसिल, 180 इंटू 0.1 कितना होता है 18 ग्राम शुगर, राइट बच्चे लोग, बराबर है। यस सर। Yes, sir. ओके, तो 180 ग्राम आपको वाटर लेना पड़ेगा, 18 ग्राम क्या लेना पड़ेगा आपको, शुगर लेना पड़ेगा, ग्लूकोज लेना पड़ेगा, राइट। हाँ, प्लस आप कुछ और भी ले सकते हो, प्लस समझो बोला उसके अंदर 0.5 मोल एनर्जी डालो, क्या डाला बोला मैंने, 0.5 मोल एनर्जी डालो। तो आपको मालूम है कैसे लेते हैं 0.5 मोल अभी, चलो बोलो कैसे, फटाफट बोलो, एनर्जी कैसे लेंगे 0.5 मोल। तो हम नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलार मास, NaOH क्या होता है, Na प्लस O प्लस H, राइट। Na23 Yes, sir. O16 H1 कितना होता है 40 ग्राम पर मोल, बराबर है। तो 0.4 आपको मोल आपको चाहिए, वेट कितना है मालूम नहीं है, उसका मोलार मास है 40, तो W इज इक्वल टू 0.5 इंटू 40 कितना होता है 20 ग्राम, बराबर है चलो। Yes, sir. यस सर। तो बस बोलते हो आप मोल ठीक है, पर लेते हो आपको वजन करके लेना पड़ेगा, ये क्लियर है। तो अब इस बीकर में कितने कंपोनेंट है, 3 है, राइट। 10 मोल वाटर के, 0.1 मोल ग्लूकोज के और 0.5 मोल NaOH के। तो बस मैं इसका नंबर नाम देता, चलो इसको बोलता हूँ मैं N1 मोल, इसको क्या बोलता हूँ मैं N2 मोल, इसका क्या बोलता हूँ मैं N3 मोल, ठीक है। तो बस किसने पूछा आपको इस बीकर में वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना है, क्या पूछा आपको वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना है, तो आपका आंसर होगा मोल फ्रैक्शन वाटर X प्लस यहाँ पे मैंने N1 लिखा है ना, Yes, sir. यस सर। मोल फ्रैक्शन वाटर X1 will be equal to number of moles of water अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, तो वाटर का प्लस ग्लूकोज का प्लस NaOH का, समझे आपको ये। यस सर। Yes, sir. कोई पूछता है आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, आपको सिंबल क्या देखोगे, मोल फ्रैक्शन का सिंबल X होता है, पर ग्लूकोज के लिए सिंबल क्या होगा X2, क्योंकि आपने N2 मोल्स लिया, राइट। तो X2 बोलिए आगे, हाउ टू फाइंड N2 Equals to upon N2 upon N plus N1 प्लस N2 प्लस N3, राइट। हाँ, कोई बोलता है आपको NaOH के मोल फ्रैक्शन बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा, X3 is equal to N3 upon N1 plus N2 plus N3. N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, ओके एवरीवन। यस सर। So now definition of mole fraction is
मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्लस कंपोनेंट मतलब आपको जिसकी बात करनी है, बराबर है। अगर आप वाटर की बात कर रहे हो तो आप x1 बोलोगे, राइट। ग्लूकोज की बात करो तो x2 बोलेंगे, और NaOH की बात करोगे तो x3 बोलेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज, बोलो, रेशियो ऑफ, आगे कोई कंप्लीट करेगा, नंबर ऑफ moles of that, बरा ना, Yes. number of moles of that component or number of moles of particular component to, बोलिए, total number of moles. Total number of moles. हाँ, total moles of all Solution. components, right, Yes. of solution. So this is called as a mole fraction. Symbol क्या था इसका, x होता है। X. तो हम यहाँ पे कितने कंपोनेंट, 3 है, राइट। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, आपको जितने चाहिए ले लो, राइट। 2 होंगे तो x1 x2 आएगा, 3 होंगे तो x1 x2 x3 आएगा, 4 होंगे तो x1 x2 x3 x3 आएगा, राइट। हाँ, मैं क्वेश्चन इज आपके लिए जाते जाते लास्ट क्वेश्चन, x1 यहाँ पे 3 ही है, राइट। मैं x1 x2 और x3 को ऐड करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, इन तीनों को ऐड करता हूँ तो आंसर क्या आएगा आपका, n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n2 अपॉन प्लस अभी तक नहीं n3 अपॉन प्लस अभी भी नहीं आंसर, प्लस ये मैथमेटिक्स में क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर सेम है, राइट। Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्या होगा, n1 प्लस Plus n2 N2 प्लस plus N3. डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3, राइट। तो आपका आंसर आएगा हमेशा 1। 1. याद रखो, किसी भी सॉल्यूशन के आप अगर सब मोल फ्रैक्शन ऐड करते हैं, सब कॉम्पोनेंट के मोल फ्रैक्शन ऐड करते हैं, तो हमेशा आंसर कितना होगा, 1 होगा। 1. तो अगर सॉल्यूशन दो ही कंपोनेंट है तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होगा, राइट। सॉल्यूशन में अगर 3 कंपोनेंट है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 1 होगा। सॉल्यूशन में 4 कंपोनेंट है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 1 एक्सेट्रा। आर यू क्लियर? Yes, sir. तो दिस इज अबाउट सॉल्यूशंस। तो प्लस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल के साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ये चैप्टर अभी थोड़ा सा पार्ट बाकी है, विल कंप्लीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। सर आपने नोट्स नहीं भेजा है? इसका इसका भेजा है ना सर के पास, ओके। उसी फर्स्ट मेरा चैप्टर में नहीं है। कंबाइन है। सर ने आपको नोट्स, सर ने बोला दिया है, मतलब देखो आप चेक करो एक बार। हाँ ओके सर। ओके, हाँ थैंक यू सर। ओके, बाय।